الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 پڑھیں گے، تو ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ وآمنوا، جی واو پہ زبر ہے، حمزہ پہ کھڑا زبر ہے، اس لیے ہم واو کو نہیں کھینچیں گے، حمزہ کو کھینچیں گے۔ آگے میم کے نیچے زیر ہے، نون پہ پیش ہے، تو میم کو نہیں کھینچنا، نون کے پیش کے ساتھ ہی واو ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نون کو کھینچیں گے۔ وآمنوا بما انزلت، با کے نیچے زیر ہے، آگے میم پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے، تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یہ بھی الف مدہ ہے، تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ بیما، وآمنوا بما، اب آگے دوسرا جو لفظ ہے اس کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، ایک لفظ کے اینڈ میں حرف مدہ اور دوسرے کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم مد کریں گے، مد منفصل، اسے ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ وآمنوا بما مد نہیں کھینچی جاتی، بلکہ جس حرف میں مد آ رہی ہو وہ حرف کھینچا جاتا ہے، جیسے اب میم کے ساتھ الف ہے تو یہاں پہ مد آ رہی ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے، ہم میم کو کھینچیں گے۔ بیما، اب حمزہ کے بعد نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے، زا کو ہم سیٹی کی آواز کے ساتھ بھی پڑھیں گے، اور یہاں پہ ہم نون پہ غنہ کرتے ہوئے، ناک میں آواز چھپاتے ہوئے، اخفا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ بیما انزل، زا کو ہم لام سے ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے، آگے تا پہ پیش ہے، اسے بالکل کھینچنا نہیں ہے۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، میم پہ پیش، صاد پہ زبر، صاد حروف مستعلیہ ہے، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے سیٹی کی آواز کے ساتھ، اور پھر صاد کا زبر ہم دال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ دال کے اوپر شد ہے، صاد کو ہم تھوڑا سا رک کے دال کے ساتھ ملائیں گے۔ مصقدی، آگے کاف پہ 2 زبر کی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، تو یہاں پہ ادغام کا قاعدہ، ادغام بلا غنہ، قاف کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے۔ مصقدی، آگے میم پہ زبر اور ساتھ میں الف ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا، اس کو ہم کھینچیں گے۔ مصدقا لما، یہ قاف بھی حروف مستعلیہ ہے، اس کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ مصدقا لما معکم، میم پہ زبر، عین پہ زبر، کاف پہ پیش، میم ساکن، کسی کو بھی کھینچنا نہیں ہے۔ معکم، مصدقا لما معکم، ولا تکونوا، واو پہ زبر، لام پہ زبر اور ساتھ میں الف، تو یہ الف مدہ ہو گیا، لام کے بعد ہم کھینچیں گے۔ ولا
वाला ताकूनू, ता पे ज़बर, काफ पे पेश और वाव साकिन। तो काफ को हम खींचेंगे क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, तो काफ की आवाज़ खींची जाएगी। ऐसा ही नून पे पेश और वाव साकिन है तो ये भी वाव मद्दा है, इसको भी हम खींचेंगे, काफ और नून एक जैसा ही खींचेंगे। वाला ताकूनू, वाला ताकूनू। अब जब हम अगले लफ्ज़ को देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास हमज़ा आ रहा है। तो हरफ़े मद्दा के बाद हमज़ा, एक लफ्ज़ में हरफ़े मद्दा, दूसरे में हमज़ा, तो मद मुनफ़सिल, इसको हम नून की आवाज़ को खींच के पढ़ेंगे। वाला ताकूनू अव्वला, हमज़ा के बाद वाव है, वाव मुशद्दद है तो हमज़ा को हम वाव के साथ थोड़ा सख्ती से मिलाएंगे। आगे फिर लाम पे ज़बर है, उसको भी बिल्कुल नहीं खींचना। वाला ताकूनू अव्वला, वाला ताकूनू अव्वला काफिरिम भी। जी, काफ पे ज़बर और साथ में अलिफ, ये अलिफ मद्दा हो गया, काफ को खींचेंगे। आगे फ़ा के नीचे ज़ेर है, इसे नहीं खींचना। काफ़ी, काफ़ी, आगे रा के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है और साथ में बा आ रहा है। तो पहले भी बहुत दफ़ा ये बताया गया है कि जब तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो इकलाब का कायदा होता है। इकलाब क्या है कि जब तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो हम तनवीन की आवाज़ को मीम में बदल कर पढ़ते हैं। हमेशा जहाँ पे नून साकिन या तनवीन के बाद बा आएगा वहाँ पे तनवीन के साथ या नून साकिन के ऊपर छोटा सा मीम ज़रूर लिखा होगा। तो हमने तनवीन या नून साकिन की आवाज़ को मीम में बदल कर पढ़ना है और यही इकलाब है। काफिरिम भी गुना करते हुए पढ़ेंगे। काफिरिम भी, आगे हा के नीचे खड़ा ज़ेर है, उसे हम खींचेंगे। स्वाद का वक्फ जो है वो इतना कोई वक्फ नहीं है, इस पे हम अगर ना ठहरें तो बेहतर है। अव्वला काफिरिम बिही, अव्वला काफिरिम बिही वला तश्तरू। जी, वाव पे ज़बर है और लाम पे भी ज़बर है, साथ में अलिफ है तो हम लाम को खींचेंगे। वाला, वाला, अलिफ मद्दा है, लाम अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा है। वाला तश्तरू, ता पे ज़बर, शिन साकिन, ता को शिन के साथ मिलाएंगे। आगे ता पे ज़बर है, फिर इन्हें खींचना नहीं है। तश्ता, वाला तश्ता, आगे रा पे पेश है और वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, हम रा की आवाज़ को खींच के पढ़ेंगे। वाला तश्तरू, रा पे पेश है इसलिए रा पुर पढ़ा जाएगा। वाला तश्तरू बी आयाती, बा के नीचे ज़ेर, हमज़ा पे खड़ा ज़बर, या पे भी खड़ा ज़बर जो कि अलिफ मद्दा के कायम काम है। आगे ता के नीचे ज़ेर और या साकिन, या साकिन से पहले ज़ेर और या मद्दा होता है तो हम आ या ती तीनों को खींच के पढ़ेंगे, एक जैसा ही तीनों खींचेंगे। बी आयाती, बी आयाती वला तश्तरू बी आयाती सामानन क़लीला, सा पे ज़बर, मीम पे ज़बर और नून पे तनवीन, दो ज़बर की तनवीन के बाद क़ाफ हुरूफ़े इख्फ़ा में से तो हम नून की आवाज़ को नाक में छुपा के पढ़ेंगे। सामाना क़ली, सामाना क़ली, नून की आवाज़ को नाक में छुपा के गुन्ना करते हुए हम क़ाफ को पढ़ेंगे। क़ाफ हुरूफ़े मुस्तालिया में से है। सामाना क़ली, या साकिन से पहले लाम के नीचे ज़ेर है इसलिए लाम की आवाज़ को खींचेंगे। सामाना क़ली, आगे लाम पे दो ज़बर की तनवीन है, यहाँ पे हम ना ठहरें तो बेहतर है, लेकिन अगर मजबूरी हो, सांस टूट रहा हो, थक गए हों तो हम ठहर भी सकते हैं।
सामाना क़ली, लाम पे 2 ज़बर की तनवीन है। अब हम यहाँ पे वक्फ करेंगे, तो हम एक ज़बर को ख़त्म करके एक ज़बर और अलिफ को पढ़ेंगे। सामाना क़लीला, सामाना क़लीला, व इय्याया, वाव पे ज़बर, हमज़ा के नीचे ज़ेर और आगे या मुशद्दद। हमज़ा का देर हम या के साथ थोड़ा सख्ती से मिलाएंगे और फिर या की आवाज़ को खींचेंगे, क्योंकि साथ में अलिफ आ रहा है और यहाँ पे ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा है। व इय्या, आगे या पे सिर्फ ज़बर है तो इसको बिल्कुल नहीं खींचना। व इय्याया फत्तक़ून, फ़ा पे ज़बर और ता मुशद्दद। फ़ा का ज़बर हम ता के साथ थोड़ा रुक के मिलाएंगे और फिर ता पे ज़बर है, खींचना नहीं है। फत्ता, आगे क़ाफ पे पेश वाव साकिन, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, तो क़ाफ की आवाज़ खींची जाएगी। फत्तक़ू, एंड में नून है, नून के नीचे ज़ेर है, लेकिन यहाँ पे हमने आयत है, वक्फ करना है तो हमने नून को साकिन करना है। हर्फ मद्दा के बाद आर्जी सुकून आएगा तो मद आरिज़ अदा करते हुए हम वक्फ करेंगे। फत्तक़ून व इय्याया फत्तक़ून। जी नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक है। आप इसे रिपीट करें, मैं एक दफ़ा रिपीट करके बता देती हूँ। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वला काफिरिम बिही वला तश्तगू बिआयाती समनन क़लीला व इय्याया फत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी नाज़रीन, ये ज़ा का वक्फ भी आ रहा है, स्वाद का भी आ रहा है, तो स्वाद से बेहतर है कि हम ज़ा पे वक्फ कर लें। स्वाद पे वक्फ करने से बेहतर है हम ज़ा पे वक्फ कर लें। जी, सबक यहीं तक है, आप इसे रिपीट कर लें, कवायद की मशक़ कर लें। अगर आपको समझ आए सबक की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमें दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर सबक आपके पास पहुंच सके और आप फ़ायदा हासिल कर सकें। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।